Morning all. Good morning all. I'm audible. Yes, sir. So shall we start with today's topic? The last few topics we discussed about TCP. We discussed about UDP. Okay. So some miscellaneous topics are remaining in the TCP part. Today we'll try to discuss them. We will explore about them. Okay. Okay. So okay. So let's start. So in the last segment, we discussed about connection creation, data transfer, and the connection termination in case of TCP. Basically, TCP makes use of three-way handshaking in order to make the connection and perform some data transfer from both direction, either from the client side or either from the server side. We have discussed about how the sequence number changes whenever we perform some kind of data transfer. And after all, we have termination, and there are two kinds of termination. One is the full termination. We used to call it termination only, and one is half close. Okay. So in case of half close, the incoming is allowed, but the outgoing is blocked from the client side, or it might be possible from the server side. Okay. So whenever one of the parties ready to receive some data, but does not want to send some data. That is basically what half close. So today we will discuss about the sliding window, okay, or how the congestion control is done in the TCP environment. We have already studied sliding window protocol in what layer? Can you tell me? At what layer we have studied sliding window? Anyone? And what protocols we have studied in sliding window at that particular layer? Yes. If you remember, we studied about stop and wait protocol. Okay. After that, we studied sliding window protocol. And within the sliding window protocol, the very first protocol we studied was go backend, that is GBN. Okay. And after that, we studied selective repeat. Okay. So
if we consider the sliding window protocol of TCP, that is quite different from the sliding window protocol of the data link. Because if we consider the sliding window protocol, that is go back N, so in case of TCP sliding window protocol, it is quite similar to go back N, but it lacks negative acknowledgement. So there are no such kind of thing NAK that we studied in the uh, selective repeat or sliding window protocol. That is not possible. Okay, it is similar to the selective repeat. In the case, it allows the out of order delivery. अगर आपको याद हो, मैंने selective repeat में क्या बताया था? The sender window size as well as the receiver window size are same in case of selective repeat. और जब sender window size और receiver window size same होती है, और we can say that the size of the receiver window is greater than 1. We used to call it allows or supports out of order delivery. Because in case of stop and wait, we have a receiver window size that is of 1, as well as in go back and the receiver window size is also 1. But in case of selective repeat, the receiver window size is greater than 1. Okay. So that means it allows for out of order delivery. The reassembling could be done at the receiver side or the receiving PC. Okay. Or the rearrangement could be done at the receiving PC. तो दो चीज याद रखना, पहला क्या, it is similar to the GBN but it does not have negative acknowledgement. पहली चीज. In case of sliding window protocol that is implemented at TCP. दूसरा, that supports out of order delivery. That means it is similar to the selective. But there are two basic differences between sliding window protocol at the data link layer and the sliding window protocol at the TCP. The difference is, you studied sliding window protocol, we used to, the data unit in DLL was frame. That means whenever we used to like slide the window, we are sliding the window based on what data unit, that is basically frame. But the data unit in case of TCP is byte. So that is byte oriented. Okay. So just remember the sliding window in case of TCP is byte oriented. पहली चीज, यहाँ पर हम फ्रेम या सेगमेंट की बात नहीं करते, यहाँ हम एक एक बाइट की ओर बात करते हैं. तो दैट इज व्हाट बाइट ओरिएंटेड. पहली चीज. दूसरा बेसिक डिफरेंस जो है, स्लाइडिंग विंडो में DLL का स्लाइडिंग विंडो साइज वाज फिक्स. The sliding window size of DLL is fixed. Let me write these things, these two differences. Number one, that is byte oriented. Number two, variable size window. So the window here is of variable size. The size of the window at the receiver is, the size of the window at the data link layer is fixed. Okay, so these are the two basic difference between the sliding window protocol that is implemented at data link layer and one that is implemented at TCP. Number one is
the window protocol that is used at the TCP is byte oriented. Number two, the size of the window is variable in case of TCP sliding window. So any doubt? Whatever the summary I have discussed with you, class, any doubt? सर Yes. सर जो JBN और सेलेक्टिव रिपीट के साथ बताया था ना सर, वो एक बार रिपीट कर दीजिएगा। Sure. देखो GBN क्या बोलता है? We used to transmit the entire window without waiting for the acknowledgement. ऐसे ही था, विंडो थी, एंटायर विंडो को हम ट्रांसमिट करते थे। ऐसा नहीं था कि एक को सेंड किया, देन वी विल वेट फॉर द एक्नॉलेजमेंट ऑफ दैट, देन वी विल सेंड द सेकंड वन, और उसके एक्नॉलेजमेंट का वेट करेंगे, थर्ड भेजेंगे, उसका एक्नॉलेजमेंट का वेट करेंगे। यहाँ पर क्या था? द विंडो साइज वाज फिक्स, यानी कि मुझे 4 पैकेट सेंड करने। आई एम टेकिंग द साइज ऑफ द विंडो एज 4, द विंडो साइज इज फिक्स, तो वहां पर 4 के 4 फ्रेम्स में एक साथ सेंड कर दूंगा। मुझे पहले फ्रेम का एक्नॉलेजमेंट मिला या नहीं मिला उसको हम बाद में देखेंगे, बट विदाउट वरिंग फॉर द एक्नॉलेजमेंट ऑफ एनी ऑफ द फ्रेम दैट इज प्रेजेंट इन द विंडो, वी कैन सेंड द एंटायर। बट यहाँ पर क्या है, जब हम GBN की बात करते हैं, दैट इज यहाँ पर भी GBN वाला ही केस है, हम बाइट सेंड करें, बट यहाँ पर नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट नहीं। ओके, देयर इज नो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट। दूसरा मैंने बताया था आपको, दैट इज सिमिलर टू द सेलेक्टिव रिपीट। क्योंकि सेलेक्टिव रिपीट क्या करता है, आपका आउट ऑफ ऑर्डर डिलीवरी को सपोर्ट करता है, बट ये आपकी आउट ऑफ ऑर्डर डिलीवरी को सपोर्ट नहीं करता। ओके, सो दैट इज वन ऑफ द मेजर से, ये भी आउट ऑफ ऑर्डर डिलीवरी को सपोर्ट करता है, जस्ट लाइक सेलेक्टिव। तो ये दोनों अगर हम कहें सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी, in some case with the, if I compare the sliding window with the sliding window of the data, समझ में आया? Yes sir, clear sir. Yes sir. तो अब मैं बात करूंगा ये स्लाइडिंग विंडो का साइज क्या होता है। मैंने बताया वेरिएबल साइज। अब ये बेसिकली किस किस पर डिपेंड कर रहा है, मैंने याद करो आपके नोट्स में जब मैंने लिखवाया था कि स्लाइडिंग विंडो साइज जो होता है किसमें, DLL में, उसका एक फॉर्मूला लिखा है, यानी कि ड्यूरिंग द एंटायर ट्रांसमिशन वो फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, दैट इज फिक्स। ये यहाँ पर क्या है, वेरिएबल साइज का। अब वो किस किस पर डिपेंड कर रहा है, पहले द नंबर वन थिंग दैट इज डिपेंडेंट ऑन the number one thing that is dependent on the minimum of receiver window size and the congestion window size। अब ये क्या चीज है, receiver window size बेसिकली मुझे क्या बताती है, how much byte the receiver can hold। अब यहाँ पर यानी कि बफर का साइज क्या है, the receiver side। दूसरा कंजेशन विंडो। कंजेशन विंडो क्या बताती है बेसिकली कि आपका सीधी सी बात है, एक सेंडिंग TCP है ना, एक रिसीविंग TCP, लेकिन सीधी सी बात है डेटा तो जाएगा किसके थ्रू, नेटवर्क के थ्रू। और नेटवर्क में क्या हो सकता है, कंजेशन। मान लो मैं यहां से डेटा सेंड करता हूं, फॉर एग्जांपल 100 बाइट, है ना, बट ये जो मेरा नेटवर्क है इट कैन होल्ड अप टू 50 बाइट। अब आप बताओ सेंडर को और साथ के साथ जो रिसीवर की भी है ना स्टोरिंग कैपेसिटी है वो भी 100 बाइट है। अब आप बताओ मुझे कितनी बाइट सेंड करनी चाहिए फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर सो दैट इट कुड बी ट्रांसमिटेड सेफली without any packet loss।
कितनी बाइट सेंड करनी चाहिए, बताएगा कोई? हाउ मच बाइट आई शुड सर सेंड? 50। यस, आप इसको ऐसा समझो, मान लीजिए आपको किसी स्टेडियम में जाना है और स्टेडियम की कैपेसिटी है 10,000%, लेकिन अपने घर से स्टेडियम में जाने के लिए यू मेक यूज ऑफ कार। अब कार में तो मैक्सिमम 5 लोग, मैक्सिमम 5 पर्सन, है ना? तो यानी कि कैरिंग कैपेसिटी किस पर डिपेंड कर रही है? द मिनिमम ऑफ दैट, है ना? क्योंकि कार कितना को अलाउ कर रही है? 5 पर्सन को, लेकिन उसकी जो स्टेडियम की कैपेसिटी वो 10,000% की है। और ये बात समझ में? तो दोनों में से जो मिनिमम होगा दैट वुड बी द विंडो साइज एट द सेंटर। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर विंडो साइज को कंट्रोल कौन कर रहा है? ओनली द रिसीवर। सेंडर विंडो साइज को कभी कंट्रोल नहीं करता। और मैंने जब आपको टीसीपी का हेडर बताया था, उसमें एक फील्ड था क्या? रिसीवर विंडो। और एक शायद मैंने एक सिनेरियो भी डिस्कस किया था आप लोगों से, जहां पर जो रिसीवर है इट विल एडवर्टाइज इट्स विंडो साइज, है ना, कि वो कितना डेटा को होल्ड कर सकता है, वहां पर कितने बफर्स लगे। ओके, अच्छा, यहां पर हम वेरिएबल क्यों बोला था मैंने? सीधी सी बात है, कंजेशन कभी होगा कभी नहीं होगा, वी डोंट नो, ये दैट इज डायनेमिक इन नेचर, है ना? भाई रिसीवर विंडो ठीक है, आपने फिक्स कर दिया कि मैं यहाँ पर 100 बाइट या 100, सपोज एक जो मेरा बफर है वो 1 बाइट को स्टोर करता है, तो हमने फिक्स कर दिया दैट वी आर हैविंग 100 बफर्स, बट इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन व्हाट? कंजेशन विंडो, यानी कि जो बीच में आपका नेटवर्क है वो कितनी बाइट को होल्ड कर सकता है। ओके, तो यहां पर जो डायनेमिक चीज है वो आपकी क्या है? कंजेशन विंडो। ये कंजेशन विंडो बेसिकली किसको कंट्रोल करती है? विंडो साइज, यानी कि सेंडर कितने डेटा को सेंड करे, सीधी सी बात। ओके, इज दैट क्लियर? विंडो साइज आया समझ में कैसे बना? यस सर यस। ओके, यस सर। अब यहाँ पर बच्चे स्लाइडिंग विंडो मैंने आपको बताया स्लाइड करती है ना, एक एक, वो मान लो पहले ये बाउंड्री यहाँ गई, ये स्लाइड करके कहां पर आ गई? इस लोकेशन पर। ओके, एट दिस लोकेशन। खैर, इसको अब हम देखते हैं स्लाइडिंग विंडो। देखो यहाँ पर भी जस्ट लाइक जो डेटा लिंक लेयर, यहाँ पर भी एक विंडो क्रिएट, विंडो के अंदर देयर विल बी सम नंबर ऑफ बाइट्स, द नंबर ऑफ बाइट्स inside the window represent how many bytes the sender can send without worrying about the acknowledgement. See this one, यानी कि रिसीवर और द सेंडर कैन सेंड बाइट नंबर m से लेके कहां तक? बाइट नंबर n तक। ओके, here we are having two things. One is the like right arm and one is left arm. There are basically two things to control the size of the window. We have basically, we have basically right arm and left arm. And in case of sliding window protocol, there are three activities. There are three activities. पहली एक्टिविटी क्या होगी बच्चे? सीधी सी बात है, मैंने क्या बताया, यहां पर वी कैन मूव दिस पॉइंटर, राइट पॉइंटर टू द लेफ्ट और राइट, टू द राइट और लेफ्ट, दोनों साइड, दोनों वे मूव कर सकते, बट वी कैन मूव द लेफ्ट पॉइंटर इन द राइट डायरेक्शन। ये लेफ्ट में कभी नहीं जाएगा, पहली चीज।
ओके दूसरा, if I move the right pointer to the right side, that means we are opening the window. Open क्यों कर रहे हैं हम? Suppose we have received the acknowledgement for some of the byte that has been sent. और जब मुझे उनका एक्नॉलेजमेंट मिल गया तो क्या मुझे उनको बफर पे रखने की रिक्वायरमेंट है? नो. But that means I can move up my right arm, or we can say right pointer, to the right side. That means some of the newer byte would be eligible for the sending. Okay, but ये जितना भी bytes present है विंडो के अंदर, उनका किसी का भी acknowledgement receive नहीं हुआ. Let me tell you. But all the bytes that are present in the left side of the left pointer that has been received and also acknowledged. All the bytes that are present in the right of the right pointer that are waiting to be sent. All the bytes that are present within the sliding window that has been sent but not acknowledged. इसमें कोई डाउट हो क्या रहा है यहाँ पर? हाँ सर मतलब सर ऐसा बोल सकते हैं जो रेड कलर वाला पोर्शन है उसको मतलब सर जितना कंजेशन होगा उतना ही ये साइज बढ़ता है. हाँ बेटा, दोनों का मिनिमम. वी कैन नॉट से कंजेशन विंडो हो सकता है कि ज्यादा अलाउ करे. मान लो आपका जो रिसीविंग टीसीपी है वो केवल होल्ड कर सकता है, सपोज उसके अंदर बफर ज्यादा नहीं है ना, तो बफर ज्यादा नहीं है तो सीधी सी बात है, हो सकता है वो 25 बाइट को ही कैरी कर सकता है. लेकिन यू आर यूजिंग सम फास्ट इंटरनेट, फास्ट नेटवर्क, और फास्ट नेटवर्क में कंजेशन कम होगा या ना के बराबर होगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ. तो वहां पर इट कैन होल्ड अप टू 200 बाइट. तो मैं भाई फिर अगेन उस केस में कितना सेंड कर सकता हूँ? जो रिसीवर सेफली रिसीव कर सके. सेफली कितनों को रिसीव करेगा? वो 25 बाइट. अरे ये बात समझ में? यस सर. स्लाइडिंग विंडो का साइज डिपेंड कर रहा है मिनिमम ऑफ 2 वे रिसीवर फॉर कंजेशन. ओके, अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये चीज है समझ में. राइट के, अगर मैं राइट साइड में, राइट पॉइंटर के राइट साइड में जाऊंगा, दीज आर द बाइट्स दैट आर वेटिंग टू बी सेंट. ओके, और लेफ्ट के अगर लेफ्ट साइड में जाऊंगा, इसका मतलब क्या है? These are the bytes that has been safely received by the receiver and acknowledged. और इन दोनों के बीच में जितनी भी बाइट है, यानी कि विंडो के अंदर जितनी भी बाइट है, these has been sent but not acknowledged. इनके एक्नॉलेजमेंट का हम वेट कर रहे हैं. तो कभी भी एक्नॉलेजमेंट रिसीव होगा तो हम क्या करेंगे? किसी भी बाइट का एक्नॉलेजमेंट रिसीव, सपोज बाइट नंबर n का मुझे एक्नॉलेजमेंट मिल गया, तो हम क्या करेंगे? इस लेफ्ट पॉइंटर को राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे, है ना. राइट साइड में शिफ्ट करेंगे यानी कि ये पॉइंटर कहाँ जाएगा? यहाँ पर बाउंड्री बन जाएगी. तो वी आर क्लोजिंग द विंडो. इसका मतलब क्या है? वी आर क्लोजिंग द विंडो. सबसे पहली चीज, सपोज सम न्यू बाइट इज एलिजिबल फॉर सेंडिंग. इसका मतलब मुझे राइट को, भाई अगर ये बाइट मेरी एलिजिबल हो गई फॉर द सेंडिंग, तो सीधी सी बात, इसको किसके अंदर आना चाहिए? स्लाइडिंग विंडो के. स्लाइडिंग विंडो के अंदर आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इस राइट पॉइंटर को राइट साइड में शिफ्ट करना होगा, तभी मैं इस पर्टिकुलर m+1 बाइट को आई कैन सेंड. ओके, एंड नंबर थर्ड एक्टिविटी इज श्रिंकिंग. दैट मींस द विंडो साइज कैन बी श्रंक आल्सो. अब वो किस केस में होगा? कोई बता सकता है? एनीवन? द साइज ऑफ द विंडो कैन बी श्रंक आल्सो. भाई राइट साइड में मूव कर रहे हैं हम, ठीक है, कुछ एलिजिबल हुई, कुछ का एक्नॉलेजमेंट हो गया, लेफ्ट या राइट पॉइंटर. बट इफ आई एम मूविंग द राइट पॉइंटर टू द लेफ्ट साइड, इसका मतलब क्या है?
सर ड्रॉप मतलब बफर्स में या तो या फिर ड्रॉप कर दी समझो इसको, स्लाइडिंग विंडो क्या बोलती है, सेंड दीज बाइट्स विदाउट वेटिंग फॉर द एक्नॉलेजमेंट, विदाउट वरिंग फॉर द एक्नॉलेजमेंट। और मैं अगर इसको, बेटा ये समझो, अगर ये मैं इसको स्लाइड करता हुआ इस पॉइंट पर ले आया, इसका मतलब क्या है, द m byte or the mth byte is not eligible for the sending, so we are revoking its sending, we are revoking its eligibility। सीधी सी बात है, मान लो सेंडर ने किसी बाइट को सेंड करना है और वो बाइट रेडी है फॉर द सेंडिंग, और वो स्लाइडिंग विंडो के अंदर आ गए, वैसे इसको यूज नहीं किया जाता बट स्टिल, और वो विंडो के अंदर आ गई, देन द सेंडर हैज रियलाइज्ड कि बाइट में जो डेटा है ना, जो इंफॉर्मेशन है, दैट इज रॉन्ग, तो वो अबॉर्ट करना चाहता है इसकी सेंडिंग। तो अबॉर्ट करने के लिए क्या करना होगा, इसकी सेंडिंग को, है ना, सेंडिंग करने के लिए क्या करना होगा, अबॉर्ट करने के लिए क्या करना होगा, राइट पॉइंटर को मुझे लेफ्ट साइड में मूव करना पड़ेगा। दैट मींस वी आर रिवोकिंग द एलिजिबिलिटी फॉर सेंडिंग ऑफ ए पर्टिकुलर बाइट। एक नहीं, एक से ज्यादा भी बाइट्स हो सकते हैं जिनका रिवोकेशन हो सकता है। सो इज दैट क्लियर? तीनों पॉइंट समझ में आए, तीनों एक्टिविटी, क्लोजिंग, ओपनिंग एंड श्रिंकिंग। इज दैट क्लियर क्लास? यस सर, यस। So sliding window is used to make the transmission more efficient as well as control the flow of the data so that the destination does not become overwhelmed with the data. So TCP sliding windows are binary. So कुछ questions हैं उसको. What is the value of the receiver window for host A if the receiver host B has a buffer size of 5000 bytes and 1000 bytes received and unprocessed? ओके, तो इसमें आपको बताना है रिसीवर की विंडो का साइज क्या होगा। सी द वैल्यू ऑफ द रिसीवर विंडो वुड बी 5000 minus 1000, that is 4000। अब ये कैसे बना, the host B can receive only 4000 bytes of data before overflowing its buffer. So the host B advertised this value in the next segment to the. Okay. Clear हुआ ये question? What is the value of the receiver window for the host A? Okay. With the receiver host A को B ने क्या बताया, कहने का मतलब ये है, host A को B ने क्या बताया, if the receiver host B, receiver is host B has a buffer size of 5000 bytes, भाई बफर का साइज तो 5000 bytes है, and but they are having 1000 bytes of receive तो हो गए but unprocessed, यानी कि 5000 में से 1000 बाइट्स में क्या है, या 1000 बफर्स में क्या है ना, 1000 बाइट्स मेरी वो सेव्ड है। ओके, मेरे पास कितने बचे, अभी कितने बफर है मेरे पास, ओनली 4000, बाय 5000 में से 1000, 4000। तो अब जो नेक्स्ट डेटा जाएगा फ्रॉम द बी टू ए, बी एडवर्टाइज करेगा अभी मेरे पास कितने खाली बफर्स हैं, that means B would be having 4000 bytes of space. Okay. Now, what is the size of the window for host A if the value of receiver window is 3000 bytes? Receiver window का वैल्यू क्या है, 3000 bytes, and the congestion window is 3500 bytes. मैंने क्या बताया था, the minimum of it. Value क्या आएगी, the size of the window will be smaller of receiver window and the congestion window, that is 3000 bytes.
इस क्वेश्चन को पढ़ो। This figure shows an unrealistic example of sliding window. पहली चीज एग्जाम्पल है अनरियलिस्टिक। दूसरा, द सेंडर कैन सेंड बाइट्स अप टू 202, है ना, फिगर में शो करूंगा, है ना, सेंडर कितनी बाइट्स को सेंड कर सकता है, अप टू 202। वी अज्यूम दैट द कंजेशन विंडो साइज इज 20, ओके, एंड द रिसीवर हैज सेंट एन एक्नॉलेजमेंट नंबर ऑफ 200, यानी कि अब रिसीवर ने जो एक्नॉलेजमेंट नंबर भेजा है उसका नंबर क्या है, 200। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, लास्ट बाइट जो रिसीव की गई नंबर क्या था उसका, 199। यस 199 विद ए रिसीवर विंडो साइज ऑफ 9 बाइट। यहां पर विंडो का साइज क्या बनेगा, कंजेशन विंडो क्या है, 9 हो जाएगा सर, दोनों 9, दोनों का मिनिमम, ओके। सो द साइज ऑफ द सेंडर विंडो इज मिनिमम ऑफ 9 बाइट्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब उसको कौन सी बाइट नंबर सेंड करनी है, 200 से लेके 9 बाइट, है ना, 200, 201, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि 200 से लेके 208 तक इट कैन सेंड, 200 से लेके 208 तक इट कैन सेंड, okay. So byte number 200 to 202 are sent but not acknowledged, and byte from 203 to 208 can be sent without worrying about the acknowledgement. So byte 209 and above cannot be sent. So ये कुछ example करो। लास्ट बाइट जो एक्नॉलेज हुई, सेंड हुई थी एंड एक्नॉलेज कौन सी थी, 199। आगे की 200 से लेके 208 तक, the next byte to be sent and not acknowledged can be sent immediately, okay. Is that clear? Yes, sir. There are some points, okay. The size of the window is lesser of, आपको पता है, minimum of 2. The source does not have to send the full window worth of data, okay. The window can be opened and closed by the receiver but should not be shrunk. करना नहीं चाहिए, वो shrinking का जो मैंने आपको एक्टिविटी दिखाई थी, that is rarely used, let me tell you, क्योंकि किसी की एलिजिबिलिटी को रिवोक करना is not easy, okay. So the destination can send an acknowledgement at any time as long as it does not result in a shrinking window, okay. The destination can send an acknowledgement at any time as long as it does not result in a shrinking window. The receiver can temporarily shut down the window. The sender, however, can always send a segment of 1 byte after the window is shut down, okay. तो आप इसमें देखोगे सारा कंट्रोल स्लाइडिंग विंडो का किसके हाथ में है, we are having the entire control into the hands of the receiver, okay. So is that clear? Any doubt, any issue? सर फोर्थ पॉइंट बता दीजिए। Fourth one, 1, 2, 3, 4. The destination can send an acknowledgement at any time as long as it does not result in a shrinking window, okay. तो डेस्टिनेशन एक्नॉलेजमेंट को कभी भी सेंड करेगा, लेकिन उसके लिए भी एक टाइम आउट होता है, सेंड एक्नॉलेजमेंट का भी एक टाइम आउट होता है, उस टाइम आउट के अंदर एक्नॉलेजमेंट उसको सेंड करना, ओके। बट कब तक, है ना, जो उसको डिले करना है एक्नॉलेजमेंट को, कब तक, एज लॉन्ग एज इट डज नॉट रिजल्ट इन ए श्रिंकिंग विंडो। इसका मतलब ये ना हो, क्योंकि श्रिंकिंग में क्या है, हम रिवोक कर लेते हैं, इसी की एलिजिबिलिटी रिवोक। सपोज वो सेंड भी हो गया
तो उसको हम रिवोक कर दें। जब किसी को रिवोक आपने कर लिया सपोज, तो आप उसका एक्नॉलेजमेंट कैसे सेंड करें? दैट इज नॉट नेसेसरी। Yes, sir. Okay. So this is all for today. If any doubt or issue, we will discuss in the next class. I'm ending the meeting now. Thank you so much.